Hello friends, welcome to my YouTube class. And today we are going to start a new chapter, that is structural organization in animals. And in today's class we will go through the first topic of this chapter, that is animal tissue. Animal tissue, what are the introduction point? The word टिश्यू वॉज गिवन बाय बिचैट. बिचैट ने वर्ड टिश्यू दिया. टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances which perform a specific function in the body of muscular organism. This is the definition of tissue. Microscopic study of tissue is called as histology, and a person who studies about the tissue is called a histologist. Types of animal tissue. So basically there are 4 types of animal tissue. First is epithelial tissue, second is muscular tissue, third is connective tissue, and fourth is nervous tissue. एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखते हैं. एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. व्हेन एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन सिंगल लेयर, अगर एपिथेलियल टिश्यू का सिंगल लेयर प्रेजेंट है कहीं भी किसी भी ऑर्गन पे, बॉडी पार्ट पे, तो एट दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. एंड व्हेन द एपिथेलियल टिश्यू इज मल्टी लेयर्ड, और एपिथेलियल टिश्यू अगर मल्टी लेयर्ड है देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, या इसको कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू भी बोलेंगे. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कंसिस्ट करता है, एंड द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर जस्ट लाइक द टाइल्स ऑफ द फ्लोर. जैसे फ्लोर्स पे टाइल्स लगता है एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक होकर के, बिल्कुल वैसे ही सेल्स भी क्लोजली पैक रहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में और सिंगल लेयर रहते हैं. दे आर जनरली प्रेजेंट एज कवरिंग ऑफ द ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स सच एज बोमेंस कैप्सूल, यूरिनरी ब्लैडर और स्किन. देयर मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, excretion and gaseous exchange. So this is all about simple epithelial tissue. Now types of simple epithelial tissue. तो पहला है cuboidal epithelial tissue. तो from the name it is clear कि it consists of cube like cells. अगर cuboidal epithelial tissue बोल रहे हैं that means कि it consists cube like cells which are closely packed with each other. This tissue are generally present in the lining of salivary gland and pancreatic duct, and their function is production, secretion and absorption. Second is columnar epithelial tissue. Once again from the name it is clear कि it consists of column like cells. Columnar epithelial tissue consists column like cells. The nucleus of cells is elongated, and these are present in the lining of abdomen, gastric gland and intestine. Now modifications or type of columnar epithelial tissue. Few columnar epithelial tissues are specialized for secretion purpose. These epithelial tissue are called glandular epithelial tissue, and it is of 2 types: unicellular, that is example goblet cells; multicellular, example salivary gland. Some other modifications are exocrine gland. These gland pour their secretion directly in the blood. Endocrine gland. These gland pour their secretion directly into the blood. Exocrine gland. These gland pour their secretion into the duct. And heterocrine gland are those gland which having the characteristics of the both gland. तो अगर एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल लेंगे तो वी हैव स्टडीड लॉट्स ऑफ ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स. हमने पढ़ रखा है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है या थायराइड ग्लैंड है. तो ऑल दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स.
और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि दिस ग्लैंड पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द डक्ट, दैट इज लाइवरी ग्लैंड या फिर स्वेट ग्लैंड है। नेक्स्ट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड जहाँ पे दोनों का कैरेक्टर हो, दैट इज एग्जांपल इज पेनक्रियाज। नाउ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का थर्ड टाइप है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। व्हेन कॉलमुलर टिश्यू, जो कॉलम लाइक सेल्स थे, यानी कॉलमुलर टिश्यू जो थे, कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू, उसी पर अगर सीलियाज हों तो तब हम कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। देन इट इज कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन, एग्स and CSF. CSF means cerebrospinal fluid. It is present in nasal passage, oviduct, bronchioles and central canal of spinal cord. तो इतने चीज़ों के मूवमेंट में सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है। नाउ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल्स. They have limited role in secretion and excretion. Their main function is protection against chemical and mechanical stress or injuries. So they are present over skin, lining of buccal cavity and pharynx. The place where two cells in tissue join to each other is called junction. The place where two cells in a tissue join to each other is called junction. There are three types of junction. तीन तरह के जंक्शंस होते हैं सेल्स के बीच में। एक होता है टाइट जंक्शंस, तो इट स्टॉप्स लीकिंग ऑफ सब्सटेंसेस। दूसरा होता है एडहेरिंग जंक्शन, इट वर्क्स लाइक अ सीमेंटिंग सब्सटेंसेस। और गैप जंक्शंस, इट अलाउज द नेबरिंग सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ जंक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, तो इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं, तो इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप। उसमें पहला टाइप आता है एरियोलर टिश्यू। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, एंड इट हेल्प्स इन ज्वाइनिंग स्किन टू द मसल्स। यानी हमारा स्किन जो मसल्स से ज्वाइंट है, दैट इज ड्यू टू एरियोलर टिश्यू। दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूसेस फाइबर्स, मैक्रोफेजेस इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स एंड मास्ट सेल इज मेंट फॉर स्टोरेज। तो what type of cells are present in areolar tissue? These are fibroblast, macrophages and mast cell। और तीनों का फंक्शंस आपको हमने बता ही दिया। जो दूसरा टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज एडिपोज टिश्यू। तो इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फैट्स। फैट्स इसमें स्टोर होते हैं, जो बॉडी में फैट्स होते हैं या जो हम न्यूट्रिएंट्स या फूड के थ्रू जो फैट्स लेते हैं, वो सारे फैट्स इसी में आके स्टोर होते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जो भी बॉडी के फैट्स हैं इसी टिश्यू में स्टोर होते हैं। और ये अगर हम एग्जांपल लेते हैं पोलर बियर का, तो या फिर वेल का, तो जो ब्लबर होता है, ब्लबर स्टोरेज ऑफ फैट्स, जो बहुत मोटा बन जाता है एक लेयर, दैट इज़ एडिपोज टिश्यू, और उनको कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में बचाता है। नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप के हो जाएंगे सब टाइप, जिसको बोलते हैं डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर क्या है? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ टेंडन्स। डेंस रेगुलर जो होते हैं, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ टेंडन्स। और टेंडन्स क्या करते हैं? इट जॉइंस मसल्स टू द बोन्स। और डेंस इरेगुलर क्या होता है? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लिगामेंट्स। डेंस इरेगुलर लिगामेंट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट्स जॉइंस बोन्स टू बोन्स। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखेंगे कि टेंडन्स हेल्प इन ज्वाइनिंग मसल्स टू द बोन्स एंड लिगामेंट्स हेल्प इन ज्वाइनिंग बोन्स टू द बोन्स। नाउ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो इट कंसिस्ट ऑफ
पहला है बोन्स. बोन्स इज हार्ड, नॉन फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ ह्यूज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन इट्स सेल्स. It provides structural framework to the body. The cells are called osteocytes. मतलब बोन्स जिन सेल्स से बने हुए हैं उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स. द लॉन्ग बोन्स ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ बोन मैरो. जो लॉन्ग बोन्स हैं उनमें बोन मैरो भरा हुआ होता है, एंड दैट इज द साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. कार्टिलेज दूसरा है, तो इट इज़ सॉफ्ट, सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल. और ये सॉफ्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ लो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन इट. और कार्टिलेज जिन सेल्स से बने हैं उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. इट इज़ प्रेजेंट इन नोज, ईयर एंड एट द जॉइंट्स एंड बिटवीन द बोन्स ऑफ वर्टिबल कॉलम. नाउ थर्ड जो टिश्यू है, connective tissue, that is blood. तो blood consists of WBC, RBC and platelets, and you all are knowing what are the functions of WBC, RBC and platelets. So WBC stands for white blood cells, and it acts as a soldier of the body. It fights with all the foreign particles and do not allow the microbes to grow or multiply inside the body. RBC is red blood cells that carry the hemoglobin, and platelets help in blood coagulation at the time of injury. Now next is muscular tissue. Each muscle of the body is made up of long cylindrical fibers in parallel ways in a bundle. लंबे लंबे सिलेंड्रिकल बंडल फाइबर्स होते हैं और वो बंडल में बंधे होते हैं. द यूनिट इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल. तो इन बंडल्स की यूनिट को बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स. और फिर एंड द बंडल इज कॉल्ड एज सार्कोमियर. साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द मसल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म. Contraction and expansion is the main property of the muscle fibers. It is of following types. जो मस्कुलर टिश्यू हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं. तो पहला टाइप है दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेटेड मसल फाइबर, या उसी को स्केलेटन या वॉलेंटरी मसल फाइबर बोलते हैं. स्ट्रेटेड मसल फाइबर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस मसल फाइबर पे स्ट्रेशंस होते हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड, डार्क बैंड और लाइट बैंड करके स्ट्रिप बने होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल फाइबर. स्केलेटल मसल फाइबर इसलिए बोलते हैं बिकॉज कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, उसी से अटैच रहते हैं, ये स्केलेटल सिस्टम से ही अटैच रहते हैं. दूसरा है वॉलंटरी. वॉलंटरी इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये हमारे विल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड होते हैं. जब हमको ज़रूरत पड़ता है तो ये एक्सपेंड होते हैं, जब हमको ज़रूरत पड़ता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो इसमें दिया है कि इट इज लाइट बैंड एंड डार्क बैंड वेयर आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली इन दिस मसल फाइबर. तो इस मसल फाइबर में लाइट बैंड और डार्क बैंड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं. स्मूथ मसल फाइबर्स या इनवॉलेंट्री या नॉन स्ट्रेटेड. तो इनवॉलेंट्री इसलिए बिकॉज ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, हमारे विल से काम नहीं करते हैं. और नॉन स्ट्रेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिप्स जो लाइट बैंड और डार्क बैंड का है वो एब्सेंट होता है. और ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं. कार्डियक मसल फाइबर्स जो है दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट एंड दे आर हैविंग कम्युनिकेशन जंक्शंस. So this is about the muscular tissue. Last one is nervous tissue. It is also called as a neural tissue, and a neuron is the unit of the nervous tissue, and neuroglia cells are present in nervous tissue, which is protective and supportive in nature. Now thanks a lot for watching my video, and please do like and subscribe my channel. Thanks a lot.